الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمدا كثيرا وأشكره شكرا جزيلا وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما۔ اس سے پہلے فضیلت الشیخ حضرت عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فلسفہ حج اور مقصد حج کے حوالے سے انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی، یقیناً بہت مفید گفتگو تھی ان کی۔ اچھا، اب جس مرحلے میں ہم داخل ہوئے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تصویر کے ساتھ تعلق ہے، دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی یہ پریکٹیکل ہے ہمارا، مطلب ہم نے وہاں حج پرفارم کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، سننا ہے پہلے غور سے، اور پھر آپ نے ان کو اپنے دل دماغ میں جگہ دینی ہے۔ ہدایات ہیں، ہو سکتا ہے مطلب یہ ہمارا جتنی دیر کا بھی گفتگو کا آپس میں تعلق ہے، اس میں آپ کو وہ تقریر والی لذت شاید نہ آئے، کیونکہ یہ تقریر ہوئے گی نہیں، یہ بس آپ کے لیے کچھ ہدایات ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر بات شروع کرتا ہوں کہ ہمیں سفر حج پر جانے سے پہلے کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بندے کا امتحان ہے یہ سفر، تو آپ ذرا توجہ کریں اور دیکھیں کہ جس سفر پر آپ جا رہے ہیں یہ ایک مبارک سفر ہے، اس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کی آزمائشوں کو صبر و تحمل سے برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کریں اور دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کریں تاکہ آپ کا یہ سفر بہت آسان ہو سکے۔ اچھا، اب جس طرح ہم احادیث کی روشنی میں یہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دعوت دیتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی دعوت قبول کرتا ہے، تو یہ جو ہمارا سفر حج ہے اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے گھر کی تیاری ہے، جس کی زیارت الحمدللہ صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ آپ جب جائیں گے، آپ جب جدہ سے مکہ کی طرف جائیں گے، حدود حرم جب شروع ہوئے گی تو وہاں ایک بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف مسلمان ہی آگے یہاں سے گزر سکتا ہے۔ وہاں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام دی ہے، اپنے مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ شکر بجا لائیں، ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ترانہ نکلے کہ یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر تو نے ہمیں اپنے گھر کا آنے کا موقع دیا، ہم تیرے مہمان ہیں یا اللہ اور تو ہمارا میزبان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں تو ہم شایان شان طریقے سے جائیں، بہترین طریقے سے تیاری کر کے وہاں جائیں تاکہ ہمارا جو سفر ہے یہ بہت اچھا اور بہت خوشگوار ہو سکے۔ اچھا، اب دنیا کے اندر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے تحائف لے کر جاتے ہیں، اس کے بچوں کے لیے چیزیں لے کر جاتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر اب ہم نے جب جانا ہے تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے گفتگو اور بیان سنا ہے کہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی جہاں ہم نے اپنے حج کے سفر کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ریال کی ضرورت ہے، وہاں کی بود و باش کو گزارنے کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں اپنے آپ کو تقوی سے مالا مال کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ ترتیب بڑی زبردست ہے حج کی، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ اب رمضان کا بنیادی جو پیغام ہے وہ یہ تقوی ہے نا
کہ رمضان کے روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. تو بندہ جو ہے وہ تقوی سے مالا مال ہوتا ہے. اور پھر اب حج کے لیے نکلنا ہے تو بندے کو اور زیادہ وہ تقوی ہونا چاہیے, بندہ متقی ہو کر. اور حج جو ہے اس میں ہم نے 3 چیزیں ساتھ رکھنی ہیں اچھی تیاری کے حوالے سے. پہلی یہ ہے کہ مادی طور پر ہمارے پاس سفر کا خرچہ, پیچھے گھر والوں کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے روحانی طور پر کہ میرے دل میں تقوی کتنا زیادہ ہے, میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ میرا کتنا زیادہ مضبوط ہے. اور تیسرا جسمانی طور پر. یہ تینوں چیزیں ہمارے اس سفر کے اندر ہمیں جگہ جگہ قدم قدم پر ان کی ضرورت پڑے گی. پیسوں کی ضرورت پڑے گی. اچھا وہاں اللہ کے, اب دیکھیں روحانی طور پر میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم اکثر جب بیت اللہ میں جاتے ہیں وہاں نماز قاری صاحب جو امام صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو مالک یوم الدین پر ہی وہ رونے لگ جاتے ہیں. یعنی ان کی وہ آواز میں رکت طاری ہو جاتی ہے, پھر وہ ساری نماز رو رو کر پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ان کی روح اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے یہ کیا پڑھا جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ہم بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کر کے جائیں اور اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا محسوس کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا یہ پیسے والا بندہ, ہر کوئی پیسے والا نہیں جا سکتا وہاں پر, یہ اس کا فضل ہوتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. تو روحانی طور پر بھی, مادی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. جسمانی طور پر بندہ فٹ ہو, بندے کو مطلب سانس نہ پھولتا ہو, بندہ چلنے پھرنے میں بندہ چل پھر سکتا ہو اچھے طریقے کے ساتھ. اگر کوئی مسئلہ ہے, بیماری ہے تو اس کا علاج کروا کر یہاں سے جائیں. تو یہ تو کچھ ابتدائی باتیں تھیں. اب ہم نے سفر شروع کرنا ہے کچھ دنوں بعد. یہاں سے کراچی سے تو کل چلی گی فلائٹ, یہاں سے ہماری 16 تاریخ کو لاہور سے جائے گی انشاءاللہ روان. تو اب آپ یوں سمجھے کہ ہم تیاری کرنے لگے ہیں سفر حج سے پہلے. جو پہلا کام کرنا ہے ہم نے وہ حقوق العباد ادا کرنے ہیں. جانے سے پہلے آپ کے ذمے جس بندے کا لین دین ہے, معاملہ ہے, اس کو اچھے طریقے سے کر کے جائیں, حقوق العباد ادا کر کے جائیں. آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے تو آپ اس کو کہیں یار میرے ساتھ تو بھائی تو ناراض نہ ہو, میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو لہٰذا میں معذرت کرتا ہوں, اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو معاف کر دے. جانے سے پہلے حقوق العباد ادا کر کے جائیں, ناراض لوگوں کو منا کر جائیں. آپ کے پاس اگر لوگوں کی امانتیں موجود ہیں تو ان کو لوٹا کر جائیں, لوگوں کو دے کر جائیں. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ حج اور عمرے کا طریقہ شرعی طور پر اچھی طریقے سے سیکھ کر جائیں. وہاں رہنے کے اعتبار سے بھی اور وہاں کرنے کے اعتبار سے بھی حج اور عمرے کا طریقہ اچھے طریقے سے سیکھ لیں اور دعائیں اچھے طریقے سے سیکھ لیں. ابھی قاری صاحب نے ہمیں تلبیہ پڑھایا ہے, آپ یقین کریں گے 20 لوگوں سے ملاقات ہوئی, تلبیہ ہی نہیں آتا ان کو. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے والی دعا ربنا آتینا فی الدنیا نہیں آتی لوگوں کو. اور کئی لطیفے ایسے ہوئیں گے آپ دیکھیں گے, جیسے مطلب وہاں ہمارے اکثر بندے پوری نماز پڑھ رہے تھے. وجہ اس کی کیا ہے عرفات کے میدان میں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ سیکھ کر نہیں جاتے. اس کے لیے ٹائم, ایک بندہ 5 لاکھ روپے حج کے اوپر لگا دیتا ہے, وہ 5 گھنٹے نکالنے کے لیے حج ٹریننگ نہیں لیتا, سیکھتا نہیں ہے کہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے سیکھ کر جائے کہ اس نے حج پرفارم کیسے کرنا ہے, حج ادا کیسے کرنا ہے. اچھا جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ وہاں آپ نے دعائیں کرنی اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنی ہے, اور وہاں بندہ جاتا ہی دعا کے لیے تو آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے جی میرے لیے دعا کرنا. اچھا ہمارے ہاں تو ایک وہ روٹین, اچھا جی کرانگے, جی بالکل کرانگے. نہیں, جو آپ کو کہتا ہے دعا کا اس کا نام لکھیں, اس کا نام لے کر دعا کریں. اور حج پر جانے سے پہلے واک کرنے کی عادت ڈالیں, پیدل چلنے کی عادت ڈالیں, تاکہ وہاں جا کر پریشانی نہ ہو. اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے یا کوئی اور بیماری, تو اس کا اچھے طریقے سے علاج کروا کے جائیں, تاکہ وہاں جا کر آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو مطلب بلڈ کم ہوا ہے جی, شوگر کا لیول کم ہوا ہے, مشکل نہ ہو. انسولین لگتی, ساتھ انسولین لے کر جائیں, اپنی میڈیسن ساتھ لے کر جائیں. تو یہ تو سفر حج سے پہلے کی کچھ ہدایات ہیں. اب ہم اگلے مرحلے میں جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سفر کا سامان ہے وہ کیا ہونا چاہیے, سامان سفر کیا ہونا چاہیے. ضرورت کے کپڑے جو ہم نے وہاں پہننے ہیں, 4-5 سوٹ ہو جائیں. وہاں واشن ویئر کے کپڑے پہنے تاکہ وہاں دھو کر جلدی استعمال کر لیں, تاکہ استری کا جھنجٹ زیادہ نہ کرنا پڑے آپ کو.
अच्छा, एक गर्म चादर भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि मदीना और मुज़दलिफा की रातें अमूमी तौर पर ठंडी होती हैं। और मर्द हजरात एक अदद इजाफी एहराम अपने साथ लेकर जाएं, औरतें अपना इजाफी अबाया और स्कार्फ साथ लेकर जाएं। अच्छा, इसकी जरूरत पड़ती वहां इसकी जरूरत पड़ती है। आप खाना खा रहे हैं, आपके ऊपर वो सालन गिर गया, आपने एहराम बांधा हुआ, अब वो कहां धोएंगे, चेंज कर सकते हैं वहां पर आप। अच्छा, इसी तरह जब आपने मक्का से मिना जाना है तो मिना जाने के लिए एक छोटा सफरी बैग साथ रखें, जिसमें 2 जोड़े साबुन, 2 जोड़े कपड़ों के साबुन, तौलिया वगैरह उसमें आप रख सके। अच्छा जी, अब एक और अहम और इंतहाई खास बात मैं आपको बताने लगा हूं। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपका वीजा, आपका पासपोर्ट जिसके ऊपर वीजा स्टैंप हुआ हुआ है, आपका होटल वाउचर है, जिस होटल के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर आपने रहना है, उन कागजात की 2-2, 3-3 फोटो कापियां करवाकर उनके सेट बना लें, ताकि एक अगर गुम हो जाता है तो दूसरा बैग में से निकाल लें, सामान से निकालकर उसको इस्तेमाल कर लें। इसी तरह अगर कोई बंदा बीमार है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई और मसला है, मेडिसिन इस्तेमाल करता है, तो जो दवाएं आपने वहां 40 दिन रहना है, 20 दिन, 30 दिन रहना है, तो जो दवाएं आप यहां रोज खाते हैं, उतनी दवाएं आप लेकर उसको हाजी कैंप ले जाएं, वहां से उसको सील करवा लें और साथ डॉक्टरी नुस्खा भी रखें। जिस नुस्खे के मुताबिक आप वो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो अपने साथ रखें, ताकि वहां पर आपको सऊदी अरब में वहां मतलब ये है कि खुली गोलियां नहीं मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं, डब्बियां मिलती हैं, तो ताकि आपको वहां मुश्किल ना हो। अच्छा, जिस तरह भी कई दोस्त पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर कोई बंदा मुश्किल में है, नीचे नहीं बैठ सकता, वहां से कुर्सियां मिल जाती हैं। वैसे अगर आप यहां से लेकर जाना चाहें फोल्डिंग कुर्सी हल्की फुल्की, तो यहां से भी साथ लेकर जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा मेरी तरह ऐनक इस्तेमाल करता है, तो वो एक इजाफी ऐनक भी साथ लेकर जाए, वहां गुम हो सकती है, ऐनक टूट सकती है, ताकि वहां जाकर आपको मुश्किल पेश ना आए। गुम होने या टूट जाने की सूरत में आप उसको अच्छे तरीके से दूसरी ऐनक लगा लें। अच्छा जी, अब यह है कि हालत हराम में जूते जो आपने पहनने हैं, ऐसे जूते पहनने जिनके पहनने से टखने नंगे हों, और जूते रखने के लिए हल्का फुल्का बैग भी होना चाहिए। वैसे तो जो लोग पहले गए हुए हैं, तो वो अब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हर गेट के ऊपर वो शापर लेकर खड़े होते हैं, देर होते हैं इसमें जूता डाल लें। तो अगर हमारे पास खुद का अपना शापर बैग हो तो हम उसमें जूता डाल लें। इसी तरह वहां धूप तेज भी होती है, तो अगर कोई बंदा सन ग्लासेस इस्तेमाल करता है, धूप का चश्मा इस्तेमाल करता है, वो लगा ले, कोई हर्ज नहीं, साथ ले जाए। वहां आपको नाखून काटने के लिए नेल कटर की भी जरूरत होती है, मूंछे काटने के लिए कैंची की भी जरूरत होती है, तो ये एक नेल कटर, कैंची, ये चीजें भी आप साथ अपने सफरी सामान के अंदर रखकर साथ ले जाए। अब ये आपने सामान अपना पैक कर लिया, अब आपने जहाज में बैठना है। दौराने सफर कैसे करना है आपने, वो चीजें जरा गौर से सुन लें, अच्छी तरह से चेक कर लें कि जो आपका दस्ती सामान है, जो आपने हाथ में लेकर जाना है, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसको ले जाने की इजाजत नहीं है। मसलन तेल, शैम्पू, लिक्विड कोई चीज, पेस्ट वगैरह, वो आपको साथ नहीं ले जाने देंगे, वो आप अपने लगेज में जो आपने सामान बुक करवाना है उसके अंदर आप डाल दें। अच्छा, इसी तरह कैंची, सुई धागा या छुरी वगैरह साथ है, उसको हैंड कैरी में न रखें, बल्कि उसको कपड़ों में लपेट कर जो आपने सामान बुक करवाना है उसके अंदर उसको डाल दें। और अहम बात यह है कि अपने सामान पर अपना नाम, पाकिस्तान का पता वगैरह ये साफ हरूफ में लिखें, खुला खुशखत लिखें। अच्छा, अब यह है कि वो लोग लिख देते हैं छोटी मोटी मार्कर के साथ, वो मिट जाता है। आप अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करें। वहां बैग गुम हो जाता है, मतलब जब हमारे वालिदैन या हमारे बुजुर्ग जाते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने सफर नहीं किया होता, अब ये उनके लिए नया सफर होता है। वहां हमारी जुबान अपनी नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों को उर्दू नहीं समझ आती, तो इसलिए आप अपनी सहूलत के पेश नजर उस बैग के ऊपर मोटे मोटे खुशखत अल्फाज में अच्छे तरीके से नाम लिखें, ताकि पता चले कि ये मेरा ही बैग है। अच्छा, दूसरा ये करना है, जो आपका सूट केस है उसमें कई खाने होते हैं, कई जगह पर जिप लगी होती है, सारे जिनमें आपका सामान है या जिनमें सामान नहीं है, वो सारे पॉकेट बंद कर दें, सारी चीजें बंद कर दें, ताकि आपके उस पॉकेट को कोई बंदा गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपको अगर याद हो तो कुछ साल पहले हमारे यहां कराची की एक फैमिली के साथ एक हादसा पेश आया था। उनको ट्रैवल एजेंट ने जूते दे दिए कि जी ये जूते आप हमारी तरफ से गिफ्ट कर लें। अब उन जूतों के अंदर मंशियात थी,
वो फैमिली बड़ी अच्छी थी, वो पकड़ेंगे वहां पर? आपको मतलब वहां तो मंशियात की सजा मौत है। अच्छा, इसी तरह कई मरतबा ऐसे होता है कि आपके बैग की कोई जिप खुली है, उसमें कोई बंदा ऐसी चीज डाल देता है। अच्छा, अगर वो पकड़ा गया तो वो पकड़ा जाएगा, निकल जाएगा तो आप चुपके से वहां से वो बंदा निकाल लेगा। इसलिए अपने बैग को अच्छे तरीके से लॉक करें, उसकी जितनी छोटी छोटी पॉकेट्स हैं उनको बंद करें, ताला नहीं लगा सकते, सुई के साथ सिलाई कर दें ताकि उनका मिस यूज ना हो सके, कोई बंदा उनको गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिर इस तरह करें, देखें अमूमी तौर पर काले रंग के बैग होते, बैगों जैसे बैग होते, अपने बैग के ऊपर एक खास निशानी लगाएं, कोई रस्सी बांध दें, कोई टाकी बांध दें, कोई रिबन बांध दें, ताकि 20 बैगों में भी आपका बैग पड़ता हो तो आप कहें ओ लाल कपड़े वाला मेरा बैग है, ठीक है जी, वो चिट्टा कपड़ा जिसको बांधा हुआ मेरा बैग है, ताकि आप अपने बैग को अच्छे तरीके से पहचान सकें। दूसरा ये करें कि आप एयरपोर्ट के ऊपर किसी बंदे का सामान उठाने की हामी ना भरें जो आपको जानता नहीं, आपको जानता नहीं, कई मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, अब वहां पर मतलब मुश्किल हो गई, वो बाद में शायद हल हो जाए, लेकिन उस वक्त तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लिहाजा आप अपने दौरान सफर इन चीजों का ख्याल करें। अच्छा, इसी तरह आपके पास जाते हुए पैसे होंगे, वो एक ही बंदे के पास सारे पैसे ना रखें, उन पैसों में आप ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं तो 2-3 हिस्सों में बांट कर रख लें। अगर आपके साथ कोई मसला होता है, गुम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, सारे तो ना गिरें ताकि वो आपको मतलब। अच्छा, जो अब आपने यहां से लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा तक, जद्दा से मक्का तक आपने जो दवाइयां रास्ते में 1-2 खुराकें खानी है वो अपने हैंड कैरी में रख ले, बाकी सारी दवाइयां वो अपने उस सूटकेस में जो आपने सामान बुक करवाना है उसमें डाल दें। अच्छा जी, अब जब हमारा सफर शुरू हो चुका है, अब क्योंकि हम लोग सफर में, इसलिए हम कसर नमाज पढ़ेंगे। अगर हमें जमात के साथ नमाज मिलती है और इमाम जो है वो मुकीम है, उसके साथ हम पूरी नमाज पढ़ेंगे। अगर हम इनफरादी नमाज पढ़ेंगे तो हम उसको कसर यानी दोगाना हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारा जो यहां से सफर स्टार्ट हुआ है, आप एक मुबारक सफर पर जा रहे हैं, एक मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं, एक नेक सफर पर जा रहे हैं, तो इधर उधर की बातें करने की बजाय, फजूल बातें करने की बजाय अपने आप को कोशिश रखें कि आप बावजू रहें और कसरत से अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कलमा तैयबा, ये विर्द और जिक्र आप इनको करते जाएं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हमारा सफर सामान पैक हो गया है, अब हमने हज करना है। हज 3 किस्म का होता है मेरे भाई, हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तु। तो अब ये जो हज इफराद होता है, ये अमूमी तौर पर मुकामी लोग करते हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, ये वही लोग इस हज को ज्यादा अवेल करते हैं। हज क़िरान ये वो हज है जिसमें हज के महीनों शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में उम्रा करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है। हज क़िरान, सॉरी, ये ऐसा हज है जिसमें कुर्बानी साथ लाना जरूरी होती है और उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोला जाता। दूसरे नंबर पर हज क़िरान है, ये ऐसा हज है जिसमें कुर्बानी का जानवर साथ लाना जरूरी होता है और उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोला जाता। हज का वक्त आने तक हाजी उसी एहराम में हज के लिए चला जाता है। इस वक्त हज और उम्रा दोनों की नीयत एक ही होगी। अब जो तीसरा हज है जो हमने करना है उसको हज तमत्तु कहा जाता है। ये वो हज है जिसमें हज के महीनों शवाल, ज़िलक़ादा, ज़ुलहज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में उम्रा करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है। फिर 8 ज़ुलहज्ज को दोबारा हज के लिए एहराम बांधकर हज की नियत की जाती है। तो अब किस हाजी के लिए कौन सा हज ज्यादा अफजल है? अगर हाजी घर से या मिकात से कुर्बानी अपने साथ ना ले जा रहा हो जैसा कि हम, उसके लिए हज तमत्तु अफजल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की ख्वाहिश की थी। अगर हाजी घर या मिकात से कुर्बानी अपने साथ ले जा रहा है तो इसके लिए हज क़िरान अफजल है और मक्का वालों के लिए हज इफराद अफजल है। तो हमने तो हज तमत्तु ही करना है इंशाअल्लाह रहमान। अच्छा जी, अब हमने चूंकि पहले उम्रा करना है तो हम पहले उम्रा डिस्कस करेंगे आपके साथ कि उम्रा हमने किस तरह करना है। तो अब जी जरा थोड़ा सा गेयर चेंज करते हैं, अब हम उम्रा की बाबत बातें करेंगे, आप थोड़े होशियार भी हो जाएं। अच्छा, अब हमने जो एहराम बांधने हैं और हमने जो नियत करनी है, अच्छा कोशिश करें, वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, घर से भी एहराम बांध कर जाया जा सकता है।
اب جب ہم نے احرام باندھنا ہے تو کئی بندوں نے ہمیں گلے میں پھول بھی ڈالنے ہیں، جی حاجی صاحب جا رہے ہیں حج پر، تو کوشش کریں کہ آپ ایئرپورٹ پر جا کر احرام باندھیں۔ عمرے کی نیت اور تلبیہ پکارنے کے بعد ہمیں ایک بار یہ دعا کرنی ہے، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمع۔ اور اگر ہم نے کسی مطلب لبیک عمرتن کہیں گے، اور لبیک عمرتن کے بعد ہم یہ کہیں گے اللہم محلی حیث حبستنی، اور اس کے بعد ہم نے اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمع، اور اگر آپ کسی کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں تو لبیک عمرتن عن فلان، جس کی طرف سے کر رہے ہیں، اور لبیک عمرتن کسی بچے کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام آگے آپ لے دیں گے۔ اب ایک حج میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات وہ پوائنٹ ہے جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف میقات مقرر کیے ہیں۔ یہ میں نے نقشے کی مدد سے کچھ تصویریں ہیں جو آپ کو دکھائیں گے۔ احرام کے لیے جو مختلف میقات ہیں، مثلا مدینہ سے جو بندہ حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو وہ مسجد ذوالحلیفہ سے، اب یار علی بھی جس کو کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھے گا۔ اچھا، اسی طرح کوئی بندہ ملک شام سے آ رہا ہے تو وہ اس کا جو میقات ہے شام والوں کا وہ جحفہ ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی بندہ نجد والوں کے لیے کرن المنازل ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے، ہمارا بھی یہی ہے۔ تو اب اصل میں تو میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ اب ہم چونکہ ہوائی سفر کے ذریعے جاتے ہیں تو ہماری جو فضائی میزبان ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس، وہ اناؤنس کرتی ہیں کہ آپ کا میقات آنے والا، تو پھر اگر وہاں بندے سارے احرام باندھنے لگیں گے تو دشواری اور مشکل پیش آئے گی۔ لہٰذا آپ ایئرپورٹ پر جائیں، اور جب گھر سے نکلیں ایئرپورٹ پر آ گئے ہیں یا میقات پر آ گئے ہیں تو وہاں سے آپ اپنے احرام والی چادریں نکال کر احرام باندھ لیں۔ اچھا، مرد کا احرام کیا ہے؟ مرد کا احرام 2 بغیر سلی چادریں۔ آپ حالت احرام میں انگوٹھی، گھڑی، اینک، چھڑی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لبیک عمرتن کے الفاظ ادا کیجئے، اور جب آپ نے احرام باندھ لینا ہے، یا عورت کا احرام جو ہے اس کا عام لباس ہی ہے، لیکن میں اب اپنی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ عورت کے بال بالکل نظر نہیں آنے چاہیے۔ اب آیا یہ کھلی چادر اس نے اپنے کپڑوں پر اوڑھی۔ حج یا عمرہ میں عورت نہ تو نقاب پہن سکتی ہے اور نہ ہی دستانے پہن سکتی ہے۔ عام حکم ہے کہ احرام میں عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن غیر محرم مردوں کی موجودگی میں گھونگھٹ نکال کر یا سکارف باندھے بغیر چہرہ مطلب ڈھانپ لے۔ اگر غیر محرم موجود نہیں ہے تو اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ اچھا جی، اور امہات المومنین کے بارے میں ہمیں احادیث سے یہی ملتا ہے کہ جب ان کے پاس خالی ہوتی تھی، کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، اپنا چہرہ کھلا کر لیتی تھی، اور جب کوئی بندہ ہوتا، آگے لوگ ہوتے تھے جن بھی، تو اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیتی تھی۔ اب جی، جب ہم نے احرام باندھ لینا ہے، احرام پہن لینا ہے، تو ہمارے اوپر احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ احرام پہننے کے بعد جسم کے بال منڈوانا، کٹوانا، اکھیڑنا منع ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا یا کروانا، منگنی کرنا، منگنی کا پیغام بھجوانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ احرام پہن کر ناخن کاٹنا بھی منع ہے، اور احرام پہن کر جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا منع ہے۔ ازدواجی تعلقات یا اس سے متعلقہ کوئی کام کرنا بھی منع ہے، اور خشکی کا شکار کرنا یا شکار کی مدد کرنا یہ بھی منع ہے۔ موزے یا جرابیں پہننا بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ یہ 7 کام ہیں جو احرام کی پابندیاں ہیں۔ ان میں کچھ پابندیاں صرف مردوں کے لیے خاص ہیں۔ مردوں کے لیے کیا خاص ہے کہ احرام باندھ کر مرد اپنے سر پر پگڑی، ٹوپی وغیرہ نہیں لے سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اور جو صرف عورتوں کے لیے احرام کی پابندیاں ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کو دستانے نہیں پہننے چاہیے، نقاب نہیں کرنا چاہیے، چہرہ ڈھانپنا جبکہ غیر محرم سامنے نہ ہو اس وقت اس کو چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اب جائز امور جو ہم احرام میں کر کیا سکتے ہیں؟ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، گرمی لگ رہی ہے،
गुस्ल किया जा सकता है, लेकिन जो साबुन आप इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा हो जिसमें खुशबू ना हो। आपका एहराम गंदा हो गया है, उसके ऊपर कोई दाग लग गया है, तो आप उस चादर को, एहराम की चादर को धो भी सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं। हालत एहराम में आप आंखों के में इलाज के लिए सुरमा डाल सकते हैं, ड्रॉप्स वगैरह डाल सकते हैं, किसी बीमारी का इलाज करवाया जा सकता है। ऐसा तेल भी लगाया जा सकता है जिसमें खुशबू वगैरह शामिल ना हो। और मतलब अगर आपको खुजली हो रही है, आप अपने सर का या जिस्म का कोई हिस्सा सहलाना चाहते हैं, खारिज करना चाहते हैं, तो वो भी की जा सकती है। और अपने सर के ऊपर साया के लिए छतरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर कोई बंदा बहरी जहाज के लिए गया है, बहरी जहाज के जरिए गया, तो वो समंदर का शिकार खा सकता है, कर सकता है। और हालत हराम के अंदर आप सांप, बिच्छू, कौवा, चील और काटने वाले कुत्ते को एहराम की हालत में भी आप मार सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह एहराम की कुछ गलतियां हैं। आपको मैं ये बता दूं कि वहां हज के अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं दम। जी फलाने हाजी को दम पड़ गया। दम का मतलब क्या है कि आपको वहां पर मक्का में रहते हुए आपको एक बकरी या बकरा जानवर ज़िबा करके फुकराए मक्का को ही खिलाना है। और आप ये याद रखें कि वो जो बकरी या बकरा तकरीबन 1000 रियाल का आता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपको दम पड़े ही ना। तो एहराम बांधने के बगैर मीकात से आगे गुजर जाना, यह भी गलती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के भी खिलाफ है कि हर हाजी के लिए एक मीकात मुकर्रर है। तो ये मतलब आप अपने मीकात से पहले पहले एहराम बांध लें। अगर ऐसा हो गया है तो फिर आपको भाई फिदिये के तौर पर, दम के तौर पर एक बकरा ज़िबा करना पड़ेगा और वहां फुकराए मक्का को खिलाना पड़ेगा। अब जी हमने एहराम बांध लिया है, ठीक है। तो फिर जरा तलबिया मेरे साथ आपने पढ़ना है, यानी मेरे बाद पढ़ना है आपने, मेरे साथ साथ नहीं पढ़ना। जरा एक दो बार हम पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये महज तलबिया नहीं है, आपके तस्वुर में, आपके ख्याल में, आपके एहसास में ये बात जां गुज़ी हो जानी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। और हर तरीके से आपकी हाजिरी हो, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी आप अपनी हाजिरी वहां शो। अब अगर हमें इसके मानी आते हो कि बंदा अल्लाह को क्या कह रहा है, या अल्लाह मैं हाजिर हूं, ये एहसास कितना जबरदस्त है कि अल्लाह ने मुझे बुलाया और मैं अल्लाह के घर आया बैठा हूं और मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि ला शरीक लक, या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा तू ही माबूद है और तू ही माबूद बरहक है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं और मुझे जो नेमतें अता फरमाई है वो भी तेरी है और तू ही बादशाह है, सारी बादशाह तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं है। अब जी हम जहाज में बैठे हुए हैं और हमारा जहाज जद्दा में लैंड कर गया है। फिर वहां पर आपको वही एहतियात अच्छे तरीके से, आप वहां एयरपोर्ट से बाहर निकलें, आपका सामान पड़ा हुआ है, उस सामान को देखें, अपनी गाड़ी में बैठें। तो जब आप जद्दा से मक्का की जानिब जाएंगे तो इस तरह एक ब्रिज आपको ये बना हुआ नजर आएगा, ये सड़क के ऊपर है बिल्कुल। तो यहां से आपकी वो हाजी की धड़कनें तेज होना शुरू हो जाती है ना, जब मक्का आ रहा है जी, बैतुल्ला आ रहा है जी, बैतुल्ला का वो मंजर है। ये एहसास है एक कि बंदा कहता है यार मेरी तो औकात ही नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे बुला लिया है। अब कब वो वक्त आएगा जब मैं सहने हरम में हूंगा, काबा मेरी आंखों के सामने होगा, हजर अस्वद को देखूंगा, बोसा लूंगा, मुकाम इब्राहिम के पास 2 रकत पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब आपने जो काम करना है, यहां से अब आप आ गए हैं जी मक्का शरीफ में। आप अपनी बिल्डिंग में आए हैं, अपने कमरे में आए हैं, अपने होटल में आए हैं। आपने ये करना है कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद अगर आप थके हुए हैं, सस्ताना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, कर ले, नहाना चाहते हैं, नहा लें। लेकिन सबसे पहला ये काम करें कि होटल के काउंटर से होटल वालों का कार्ड ले लें। जिस बिल्डिंग में आप ठहरे उस बिल्डिंग का कार्ड ले लें, ताकि आपको पता हो
कि मैं इस बिल्डिंग में ठहरा हूं, वहां हमारे कई बुजुर्ग हाजी और हाजने वो सड़क पर पूछे, पुत्र मेरा होटल किथे वे? पता ही नहीं है। कहां था जी अम्मा जी आपका होटल? ओ जी वो पुल दे कोल सी जी। यानी पुल के पास तो सैकड़ों होटल है। तो अच्छे तरीके से उस होटल का कार्ड अपनी जेब में डालें, अपनी वो बेल्ट में डाल लें, अपने पास रखें, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अगर आप गुम भी हो गए हैं तो आप किसी को वो कार्ड दिखाकर वापस अपने होटल के अंदर आ गए। अब हो सकता है आपकी कई नमाजें, 2-3 नमाजें रहती हूं, आप सफर में थे, जद्दा से मक्का तक का सफर आपने किया, रास्ते में नमाज नहीं पढ़ सकी। अब आप मस्जिद में दाखिल हो गए, बैतुल्लाह में, बैतुल्लाहिल हराम में, मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। तो अब आप मस्जिद में दाखिल जब होंगे तो आप पहले दायां पांव रखेंगे और मस्जिद में दाखिल होने वाली दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, या बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा उग़फिर ली ज़ुनूबी वफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। तो ये दुआ पढ़कर आप मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे। अब अगर तो हमारी नमाज कोई रहती है तो पहले तो हम वो नमाज पढ़ेंगे। अगर जमात का टाइम है तो फिर हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। अब नमाज के बाद जो हमारा करने वाला काम है वो है तवाफ। अब आप आ जाएं, बैतुल्लाह के सहन में आए, जरा रूहानी तौर पर भी साथ चलें। तो क्या नजारा हो कि हम बैतुल्लाह में खड़े हुए हों। वो कहते हैं ना कि वो काबे की रौनक, वो काबे का मंजर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। हाँ जी, तो बंदा इस एहसास से, तकवा की दौलत से माला माल हो और सहने हरम में बंदा खड़ा हो, तो बस फिर आइए थोड़ा सा बैतुल्लाह का तारुफ करवाते हैं। इस तरह है जी बैतुल्लाह, ये बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह, और ये हतीम काबा है। अब हमने जब जाना है बैतुल्लाह के अंदर तो हमने, अब कई हाजी होते हैं, जज्बात बड़े होते हैं, धड़कनें तेज होती हैं, वो जाते ही अला तूल तवाफ स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, तवाफ जिस जगह से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं उसको। आप देखें कि आप मताफ के अंदर हैं जहां तवाफ करते हैं। ये एक इसका कोना है, इसको रुकने यमानी कहते हैं। एक इसका ये कोना है, इसमें हजर अस्वद नस्ब है, यहां पर इसका दरवाजा है, और ये है बैतुल्लाह का मुख्तसर जो तारुफ है। अब आपने एहराम बांधा हुआ है, आपने उम्रा के लिए तवाफ शुरू करना है। अब आप उस एहराम की चादरों में थोड़ी तब्दीली करेंगे। तब्दीली आपने क्या करनी है, मर्दों को तवाफ शुरू करने से पहले कंधों वाली चादर का एक हिस्सा दाएं कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डालें, सज्जा मोटा नंगा कर लेना, ते खब्बे मोड़े होते चादर पा लेना। इसको हज की इस्तिलाह में हालत इस्तिबा कहा जाता है। इस तरह दायां कंधा आपका नंगा हो और बाएं कंधे के ऊपर इस तरह नीचे से निकालकर चादर आप। अच्छा जी, अब ये वाली पोजीशन बनाकर आपने हजर अस्वद के बिल्कुल मुकाबले में आ जाना है। आप यूं समझें कि आप बैतुल्लाह के सहन में हैं और हजर अस्वद आपकी बाईं तरफ है, खब्बे पासे, आप उसके सज्जी तरफ है। तो ये तरीका है जी। अगर मौका मिल जाए तो इस तरह बोसा इस तरह भी लिया जा सकता है, इस तरह हाथ भी लगाया जा सकता है। इस तरह करना दोनों हाथों से ये वाला अमल दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, अब जी हम तवाफ का आगाज करने लगे तो पोजीशन हमारी क्या होगी कि बैतुल्लाह हमारे किस तरफ होएगा, थोड़ा बोले भी जी, हमारी बाईं तरफ होगा और हम उसके दाईं तरफ होंगे। वहां उन्होंने हमारी सहूलत के लिए ग्रीन लाइट्स भी लगाई हुई हैं इस तरफ। हजर अस्वद के सामने से तवाफ का आगाज किया जाएगा। यहां पर आप खड़े हैं जी, तो यहां से अब आप अपना तवाफ शुरू करें। इस तरह आपने करना है अपना तवाफ। जितने भी हमने चक्कर लगाने हैं बैतुल्लाह के गिर्द, वो इस तरह लगाने सारे, इसके ऊपर ऊपर से, यहां से। अच्छा, तो वैसे तो एक वो तस्बीह मिलती जिसे तस्बीह तवाफ कहा जाता है, उसमें 7 मणके होते हैं। वो भी अगर याद नहीं रह सकता बंदे को तो वो तस्बीह अपनी उंगली में डाल लें, एक चक्कर पूरा हो तो एक मन वो दाना गिरा दे। अच्छा जी, अब आपने भी तवाफ शुरू करना है। यहां से तवाफ के जो पहले 3 चक्कर हैं उन 3 चक्करों ने मर्दों ने रमल करना है। अब रमल हज का एक इस्तिलाही लफ्ज है।
रमल कहते हैं जिस तरह के पहलवान चलते हैं, थोड़ा पब्बा पार चलना, थोड़ा तेज तेज चलना, आपने उस तरह करना है। तो आपके पहले 3 चक्रों में, पहले 3 चक्रों के अंदर आपने रमल करना है। अब यहां से हमारा सफर शुरू हुआ, यहां से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आपने हाथ लग गया तो ठीक है, तो हाथ लग गया तो हाथ को बोसा देंगे, हाथ नहीं लगा तो बोसा देने की जरूरत नहीं हाथ को। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर अब आपने यहां से तवाफ शुरू कर देना। हमारे यहां बहुत सी बाजार में किताबें हैं जिनमें हर तवाफ के चक्कर की अलग अलग दुआ लिखी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तवाफ के चक्कर की कोई अलग दुआ मनकूल नहीं है। आपको जिस जुबान में दुआ आती है, जो दुआ आती है, जितनी दुआ आती है, आप गए वहां दुआ करने के लिए, तो अब यहां से शुरू हो जाए ना दुआ करना, यहां से शुरू, यहां से शुरू, यहां से शुरू, आते जाए। अब आप जब यहां रुकने यमानी के पास आ गए हैं, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान हमने ये वाली दुआ पढ़नी, ये भी आपने मेरे साथ पढ़नी है। हम 2-3 मरतबा इसको पढ़ लेते हैं। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो यहां पर आपने यही दुआ पढ़नी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपसे ये साबित है। बाकी आपने जो चक्कर लगाने हैं उसमें आपको जो दुआएं आती हैं, जितनी दुआएं आती हैं वो यहां तक पढ़े बाकी। अच्छा, अब कई बंदों को बड़ी जल्दी होती है, और हमारे यहां एक ये भी रवायत मनकूल है कि जी कावे पर जो पहली नजर पड़ती है, बंदा जो दुआ मांगता है वो कबूल हो जाती है, तो बाकी नहीं होती कबूल। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब एक बंदा ऐसा भी तो हज करने चला गया तो जिसको नजर ही नहीं आता, वो तो महरूम हो गया फिर इस बात से। हाँ जी, ये बात नहीं है। और आप यकीन करें, आप में से अक्सर लोग गए होंगे, अगर बंदा तकवा की दौलत से माला माल है और वो शौरी तौर पर ये समझता है कि मैं अल्लाह के घर आया हूं, उसको बहुत दफा ये एहसास ही, वो दम बखुद हो जाता है, उसकी कैफियत ही बड़ी अजीब हो जाती है, बस आंसू होते हैं और वो होता है फिर वो चक्कर लगाते हुए हर रो रहा है, ऐसे रो रहा है, ऐसे रो रहा है। और असल मकसद ही ये है कि आप वहां अल्लाह की हुजूर मुनाजात करें। तो यहां से भी हमारा चक्कर शुरू होएगा यहां पर, और रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान हमने ये दुआ पढ़नी है। इसी तरह एक चक्कर हो जाएगा, दूसरे चक्कर में फिर आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा चक्कर स्टार्ट कर देना है। इसी तरह आपने 1, 2, 3 चक्कर, जैसा कि मैंने बताया कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में हमने रमल करना है, यानी कंधे हिलाते हुए पहलवानों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना है। आजकल तो वैसे बड़ा रश होता है, इस तरह हो नहीं सकेगा, लेकिन कोशिश करके ताकि उस तरह की बंदा वो एक्ट उस तरह का कर ले। अच्छा, इस तरह हमने फिर बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाने हैं। तो इन 7 चक्करों से हमारा एक मरहला मुकम्मल हो जाएगा और उस मरहले को कहते हैं तवाफ। हमारा तवाफ क्या होएगा जी? मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जो हमने तवाफ किया है, ये सारे चक्कर हमने, इस जगह का नाम क्या बताया था जी हमने? हतीम। ये हमने हतीम के ऊपर से किए। अब कई बंदे तवाफ में जो गलतियां करते हैं वो हतीम के अंदर से, हर गेड़ा हतीम के अंदर से होकर आते हैं जी, ये दुरुस्त वाली बात नहीं। और कई बंदे कोशिश करते हैं कि हर चक्कर में हजर अस्वद को हाथ लगे। हजर अस्वद को बोसा देना, हाथ लगाना सुन्नत है, वहां किसी को धक्का देना हराम है। लोग इसको बोसा देने के चक्कर में वहां धक्कम पेल भी करते हैं। तो आप जो यहां मस्जिद इसहाक में आए बैठे दोस्त हैं, या जो दीगर जगहों से आपने तरबियत लेनी हज की, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसका लिहाज रखें कि यार वहां हमने धक्कम पेल नहीं करनी। तो
तवाफ की गलतियों में पहली गलती ये करते हैं कि यहां से होकर आते हैं, फिर बैतुल्लाह के हर गोशे को चूमना, उसको हाथ लगाना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित नहीं है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जी आपके चक्कर हो गए 7 पूरे और आप आ गए यहां पर, इस जगह को क्या कहते हैं जी? मकाम इब्राहिम। अब 7 चक्कर पूरे करने के बाद मकाम इब्राहिम के सामने या इसके इर्द गिर्द दूर नजदीक जहां भी आपको जगह मिले, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ते हुए किसी के लिए रुकावट ना बने, तो आप में खलल ना पैदा हो, थोड़ा पीछे जाकर पढ़ ले। तो 7 चक्कर पूरे करने के बाद मकाम इब्राहिम के सामने या जहां कहीं भी जगह मिल जाए 2 रकत नमाज अदा करनी है। पहली रकत में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेंगे और दूसरी रकत में कुल हु अल्लाहु अहद, इसकी हम तिलावत करेंगे। इस तरह हमने 2 रकत नमाज पढ़नी है। अच्छा, वहां कई बड़े लतीफे भी होते हैं। एक मरतबा वो हमारे साथ एक खातून भी थी, माशाल्लाह वो बड़े तवाफ करती थी, तो वो आकर हर रोज कहें आज मैंने 5 बोसे लिए हैं, आज मैंने 6 बोसे लिए हैं, आज मैंने 10 बोसे लिए। तो एक नौजवान मेरे पास आया, कहता कारी साहब हमें काफी दिन हो गए आए हुए, तो आपने कितने बोसे लिए हैं? मैंने कहा मैंने तो एक भी नहीं लिया अभी तक। तो कहते वो अम्मा से के पास आए हैं, पता नहीं उसके पास को परमिट है, वो रोज जाती है तो भूसा लेके आ जाती है। अच्छा, मैं गया, मैंने कहा माँ जी वो माशाल्लाह आप सुना है आपके बारे में, आपने हर रोज ही भूसे लेनी है। तो कहती हाँ लेनी है। मैंने कहा वो हजर अस्वद कहां पर है? कहती तेन यही नहीं पता कितने हजर अस्वद? मैंने कहा फिर भी मुझे थोड़ा बताएं तो सही। कहती तू चली सुबह मेरे नाल, मैं तेन दसांगी, अन्य भी नजर आता चमकदा वा। कहती मैंने कहा कि वो मुझे पता चल गया वो हजर अस्वद की बजाय इसका भूसा लेती थी आकर। यानी अब क्या है कि वो अकीदत में उसकी मोहब्बत और खुलूस में कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हजर अस्वद वो बैतुल्लाह के अंदर है, हजर अस्वद यहां पर है। अच्छा, वो मुझे बड़ी, अब उसकी सादगी पर मुझे हंसी भी आई और मतलब उस पर अफसोस भी हुआ कि ये आई है इतना पैसा खर्च करके, इन्हें यही नहीं पता कि हजर अस्वद कहां पर है। अच्छा, इसी तरह कई बंदे वो तवाफ शुरू करने से पहले लिहाज ही नहीं करते कि हम कहां पर खड़े हैं, हजर अस्वद के सामने खड़े हैं या किसी और जगह पर खड़े, बस वो अलातूल तवाफ शुरू कर देते हैं। हजर अस्वद के पास से तवाफ शुरू करना चाहिए। एक दफा मैं सेने हरम में था, तो अक्सर गलतियां हमारे बड़े सगीर के लोग और पाकिस्तान के लोग करते हैं। एक साहिब थे, उन्होंने एहराम बांधा हुआ, तो खड़े हुए, मैंने एक चक्कर लगाया, कुछ टाइम के बाद आया तो वो वहां खड़े थे। दूसरे चक्कर में आया तो वो वहां पर खड़े थे। मैंने उसे कहा हाई साहब आप शुरू क्यों नहीं कर रहे? वो उकाड़ा के थे, वो कहते मैं कहता हूं थोड़ा रश कम हो जाए ना तो फिर करता हूं मैं शुरू। उसको मैंने कहा ये रश नहीं कम होएगा यहां पर, मतलब ये क्या बिल्कुल रश कम नहीं हो सकता, आप करें बिस्मिल्लाह करें। तो यानी वहां पर बंदे को बिल्कुल साजा माजा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब शौरी तौर पर सीख सूख कर बंदा जाए। वहां रहने के एतबार से, वहां करने के एतबार से बंदे को पूरा अक्ल और शऊर और उसको मतलब पूरी फहम फरास उसको होनी चाहिए। अब जी आप थके हुए हैं तो आप आबे जमजम पी लें तो आपका मुकम्मल हो गया है। और जमजम पीने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जमजम का पानी उस मकसद के लिए है जिसके लिए पिया जाता है। तो आप मतलब जमजम पिए। और जमजम पीने के बाद, अच्छा यहां पर भी एक बहुत बड़ी गलती है, मैं आपको बताता हूं। ये मुझे तस्वीर में देखकर बताएं ज्यादा लोग कहां पर खड़े हैं? नहीं, खड़े कहां पर हैं तस्वीर में बताएं। ये दरवाजे की दहलीज को चंबड़े हुए हैं ज्यादा लोग। अच्छा, जबकि चिमटना कहां पर चाहिए और मुल्तजम किधर है? यहां पर है। अच्छा, अब पता ही नहीं है मुल्तजम को चिमटना है कि दरवाजे की दहलीज को चिमट रहा है। मैं एक मरतबा यहां से चिमट कर वापस आया तो एक बुजुर्ग थे, कहते पुत्र थोड़ा जिहा आसरा ते करा। मैं कहा करना की? कहते बस दहलीज नूं हाथ लवा दे एक बार। मैंने कहा उसका क्या फायदा होगा? वो कहते बस इन्हू हाथ लाना है। मैं अब हाथ तो यहां लगाना चाहिए। और वैसे भी अगर आपने एहराम बांधा हुआ है तो एहराम वाली सूरत में आप यहां ना जाएं। इसको वो अतर लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, तो आपके एहराम को इतर लग जाएगा। आप जब नफली तवाफ कर रहे हो तो फिर इस तरह का शौक पूरा करने की कोशिश कर लें। तो अब अक्सर लोगों को मुल्तजम का नहीं पता कि मुल्तजम यहां पर है कि यहां पर है। वो आप यहां भी देख लें, ज्यादा बंदे उसको हाथ लगाकर दरवाजे की दहलीज को चिमट रहे हैं। तो मुल्तजम को हाथ लगाना। और फिर याद रखिएगा, वो दोस्त जो दाढ़ी रखने वाले नहीं है, जिनके पास दाढ़ी नहीं है, वो जो एक मर्द पर रुखसार लगा ले मुल्तजम को, यार फिर वो सुन्नत रसूल भी चेहरे पर सजा ले। वो बहनें, वो बेटियां, वो माएं
जो बैतुल्लाह को अपनी आंखों से देख लें, फिर वो इन आंखों के ऊपर पर्दे को लाजिम करें, फिर वो आंखों का ख्याल करें, आंखों में हया पैदा कर लें। एक हिस्सा हुआ जी, अभी हमारा टाइम थोड़ा है, अब थोड़ा इसको तेज करते हैं। इसके बाद हमने तवाफ के बाद हमने करनी है सई, और सई की जाती है सफा और मरवा की, सफा और मरवा की। अब जब आप एहराम तवाफ से फारिग होएंगे तो आपको ग्रीन कलर के वो मुख्तलिफ जगह पर बोर्ड लगे नजर आएंगे, इलल मसआ, सई की तरफ, मसआ की तरफ, जहां सई की जाती है। तो सफा पहाड़ी अब उस तरह की तो नहीं है जिस तरह की मतलब पहाड़ी होती थी, अब तो उन्होंने बिल्कुल उसको हमवार कर दिया है और उस पर बैठा भी जा सकता है, चढ़ा भी जा सकता है, वो पत्थर भी नोकीले नहीं है। अब आप सफा पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो पहाड़ी पर चढ़ते हुए आपने अल्लाहु अकबर कहना है, और फिर उसके बाद आपने अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, और फिर आपने इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, ये दुआ पढ़नी है। अच्छा, जब आप सफा पर आ गए हैं, जल्दी नहीं करनी आपने, किसी भी मरहले में इत्मीनान के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ। अब तो उन्होंने मताफ के अंदर वुजू का बंदोबस्त भी कर दिया है। वैसे तो पहले भी कई हाजी जमजम से कर लेते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रॉपर वहां वुजू का बंदोबस्त कर दिया कि किसी ने खाली वुजू करना है तो वो वहां पर मताफ के अंदर ही वुजू कर ले। तो आप अब सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे, छोटी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, आपका रुख बैतुल्लाह की तरफ है। यहां पर आपने ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। इसके अलावा आप यहां पर खड़े होकर गई दुआएं करने के लिए जी भर कर दुआएं करें, जी भर कर दुआएं करें। और फिर अब आपका सई आपकी शुरू होने वाली है। सई के भी 7 चक्कर हैं, सफा और मरवा की सई के भी 7 चक्कर हैं। अब आपने सफा से मरवा तक 1 चक्कर है, सफा से मरवा तक 1 चक्कर है। ये जब आप चलेंगे, यहां दरमियान में ग्रीन लाइट्स लगी हुई है, इन ग्रीन लाइट्स वाली जगह पर मर्दों को तेज कदमों से चलना है, औरतों को नॉर्मल स्पीड में चलना है। लेकिन कई मर्द ऐसे जोशीले होते हैं, वो सारा सही भाग भाग कर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बस आप यहां जब ये, इनको वो मीलैन अखजरैन कहते हैं, सबज सतूनों वाली जगह, यहां पर आपने मर्दों ने तेज चलना है, औरतों ने अपनी उसी दरमियानी रफ्तार के अंदर ही, जिस रफ्तार में वो चल रही हैं वो आराम से ही चलेंगी। तो सफा से मरवा तक आपका 1 चक्कर हो जाएगा, और मरवा से सफा तक 2 चक्कर हो जाएंगे। अब सफा और मरवा के दरमियान, और कई बंदे भागम भाग जा रहे होते हैं, नहीं भाई आप इत्मीनान से दुआ करें, अल्लाह का जिक्र करें। गए वहां इसलिए है, सफा से मरवा और मरवा से सफा, सफा से मरवा और मरवा से सफा। इस तरह आपका जो आखिरी चक्कर है वो मरवा के ऊपर आएगा, आपका आखिरी चक्कर जो है वो मरवा पहाड़ी के ऊपर आएगा। आपके 7 चक्कर पूरे हो गए। जब आपके चक्कर पूरे हो गए, मरवा पर है, वहां पर बैठकर भी आप जितनी दुआएं कर सकते हैं उतनी दुआएं करें। अब कई हाजियों को बड़ी जल्दी होती है, वो कहते हैं बस जी 1 घंटा लगा थे, उम्रा कर लिया, पहले घंटे च उम्रे तो फारिग हो गया सा। अच्छा भाई, अच्छा फिर कई हाजी बड़े शौक से बताते हैं जी, और जी बस जी नेड़े ही रहائش मिल गई सी, उत्थे गए जी, अजान हुंदी सी ते कमरे चों निकलने सा, तो नमाज पढ़ के फिर कमरे जा जाने सा। ओ भाई आप वहां कमरे में बैठने के लिए गए हुए, यानी वहां टाइम स्पेंड करें, बैतुल्लाह के पास बैठे, वहां दुआएं करें, इसी तरह टाइम लगाएं। अल्लाह, मैंने कई बुजुर्गों को देखा जोहर और असर के दरमियान सिर्फ तवाफ उनका बमुश्किल मुकम्मल हुआ। जोहर के बाद तवाफ शुरू किया, असर तक सिर्फ तवाफ ही हुआ उनका। तो हमारे यहां जल्दी भागम भाग जी, छेती करो जी, मुकाओ जी, बाद में होटल में जाकर रोटी भी खानी। तो ये सारी चीजों से आप परहेज करके जिस काम के लिए गए उसको और इसकी लज्जत को महसूस करें। वो हमारे पंजाबी जुबान के शायर थे मौलाना अली मोहम्मद शमसाम रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करवट करवट रहमत नाजिल फरमाए। वो कहते थे कि या अल्लाह तेरे घर दे दवारे फेरियां पाण नूं जी करदा, हां जी तेरा घर वेखा, उथे रख रख अपना सर वेखा, जिथे 1 नमाज दी लख बनदी उथे उमरा लंघाण नूं जी करदा। यानी अब कई बंदे वहां गए हुए हैं बैतुल्लाह के इर्द गिर्द, नमाज को कोई नहीं, अच्छी ही नमाज पढ़ लो जी, कोई गल नहीं। ओ भाई वहां 1 नमाज की 1 लाख नमाज पढ़नी है, अब वहां जाकर बैतुल्लाह के अंदर जाकर नमाज अदा करें, अब 1 लाख नमाज का सवाब लें। तो अलमुहिम,
तो इस तरह आपके जो 7 चक्र हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब आप, ये मैंने बता दी हैं 7 जो गलतियां हैं। अब आपका तवाफ भी पूरा हो गया, तवाफ के बाद आपकी सई भी पूरी हो गई। अब आपने तीसरा मरहला है बाल कटवाने का या बाल मुंडवाने का, टेंड करवाने का। तो सई के बाद मर्द हजरात पूरे साल के बाल मुंडवाएं या कतरवाएं, सर मुंडवाना अफजल है, और खवातीन अपने तमाम बालों के नीचे से 1 इंच के करीब बाल काट लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। अब आप जाएं अपने कमरे में रहें, फ्रेश होएं, हर नमाज आकर मस्जिद में पढ़ें, ज्यादा टाइम मस्जिद में स्पेंड करें। अब असर की नमाज का वक्त हमारा करीब होने जा रहा है, यानी कम ही उस तरफ है। तो अब हम हज को डिस्कस कर लें, ताकि फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब भी हैं, कई चीजें जो आप पूछेंगे इंशाल्लाह उसको भी मुफ्ती साहब डिस्कस करेंगे। तो अब जी जरा अगर आप तवज्जो करें तो हज के जो अय्याम हैं वो है 8, 9, 10, 11, 12 और 13 जुल्हज्जा। ये हज के दिन है। मैं आपको हज के मुकामात का तस्वीरी खाका दिखाता हूं, यानी हज कहां कहां पर होता है। अब हज के अंदर मक्का जाना जरूरी है, और मक्का से हाजी जाते हैं मिना, मिना से इरफात, इरफात से मुजदलफा, मुजदलफा से मिना, मिना से मक्का, मक्का से फिर मिना। यानी हमारा जो हज है वो इन्हीं 5 जगहों के इर्द गिर्द है, 4 जगहों के, मक्का, मिना, इरफात, मुजदलफा, मक्का, मिना, इरफात और मुजदलफा। यानी इधर ही हमारा हज होना है, इन्हीं जगहों पर। अच्छा, अब होता क्या है, रश बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खलकत जमा होती है। अब आपने तो 8 जिलहज को वहां निकलना है ना, मक्का से निकलना है, लेकिन वो आपको आकर रात को ही कहते हैं जी 7 को ही आप तैयारी पकड़ें जी, 8 को सुबह ही कहते हैं जी तैयारी पकड़ें जी। अब बंदा इधर से ट्रेनिंग करके गया होता है, वो कहता है नहीं जी अजी 8 को ही जाना है। वहां भाई ट्रैफिक जैम हो जाती है, वहां रश बड़ा होता है। तो जो आपका मुअल्लिम है, आपके साथ है, आपका मुशरिफ है, जो आपका मुदीर है, निगरान है आपका, उसकी बात माने, इंतजामिया के साथ तामुन करें। ये एक इंतजामी मसला है। वो आपने जाना तो आज आगे मिना ही है ना, तो अगर वो पहले आपको कह रहे हैं तो पहले चले जाए। लेकिन वो बंदे की ख्वाहिश होती है ना कि यार चलो 2 नमाजा हो और बैतुल्लाह जो पढ़ लवा, लेकिन इंतजामिया के साथ आप कोऑपरेट करें। अब जी आप हैं मक्का में और दिन है 8 जिलहज्जा का, हज का पहला दिन है। आपने तैयार तूर होकर एहराम बांधना है, हाँ जी, गुस्ल वगैरह करके मक्का मुकरमा में अपनी रहायश गाह से एहराम बांधे, और आप एहराम बांधने से पहले लब्बैक का हज्जन कहकर हज की नियत करें। और एक ये अल्फाज मिलते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़ी हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमा, कि हमारे हज के अंदर दिखलावा, रियाकारी और शोहरत ये मतलूब ना हो। तो अब हमने एहराम बांध लिया है, मक्का से हम आ गए हैं जी मिना में। हज का पहला दिन है और हम हैं कहां पर, वादी मिना में। यहां पर पहुंचकर हमने 5 नमाजें और रात का क़याम करना है। हम जी मिना के अंदर आ गए हैं एहराम बांधने के बाद नमाज ज़ोहर से पहले तलबिया कहते हुए। यह तलबिया इसलिए कहलवाया है, आपको रिपीट करवाया है, आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अपने साथ वाले हाजियों की भी करनी है, उनको इसका मानी और मुतालिब भी बताने। अच्छा, अब आप मक्का से आ गए हैं जी मिना पर। अब करने वाले काम क्या है कि नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर ना पहुंच पाए तो कोई हर्ज और दम नहीं है। मिना में 5 नमाजें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और अगले दिन नमाज फजर भी वहां पर ही अदा करनी है। ये हमने मिना के अंदर नमाजें अदा कर ली हैं। एक दिन हमारा पूरा हो गया है। अब अगला दिन है हज का, कौन सा दिन है जी, अगला दिन दूसरा दिन, और 9 जिलहज्जा है। पहला दिन हमने मिना में क़याम किया, 5 नमाजें वहां की, रात वहां पड़ी। अब अगला दिन है 9 जिलहज्जा, हज का दूसरा दिन। वहां हमने क्या करना है, वहां काफी खासी मसरूफियात है। वहां हमने ये करना है कि वादी निमरान में हमने खुतबा हज, वकूफ अरफा, यह हज का रुकन आजम है, और मुजदलफा के अंदर हमने रहना है। अल्लाह अकबर। हज का दूसरा दिन 9 जिलहज्जा, और हम वादी निमरा के अंदर खुतबा हज, वकूफ अरफात और मुजदलफा के अंदर हमने पढ़ाओ। ये है जी मस्जिद नमीरा। ये
عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ میں قیام اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بھی آپ تھوڑی سی غور سے میری بات سنیں۔ کئی بندے وہ سیانے ہوتے ہیں، وہ کوئی کہا اتنے بیٹھو جی، جتنے جگہ ملتی بیٹھو جی، نہیں، آپ نے عرفات کی حدود میں داخل ہونا ہے، عرفات کی حدود میں آپ نے داخل ہونا ہے۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر باجماعت قصر، وقوف عرفہ کے درمیان جو اصل کام ہے وہ دعائیں مانگنا ہے، وہ ذکر اذکار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ پہاڑ پر کتنا رش ہے، بندے کوشش کرتے ہیں پہاڑ پر چڑھیں، اوپر چڑھ جائیں، اور یہاں پر کتنا رش ہوتا ہے۔ اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ بندے مارکر کے انتظار میں لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جی وہ کیوں کھڑا ہے بھائی تو؟ اور مجھے مارکر چاہیے، میں نے یہاں اپنا نام لکھنا ہے۔ اور بھائی وہاں جس اللہ کے لیے آئے اس اللہ کو تمہارے نام کا پتہ نہیں ہے؟ یعنی اس طرح کے اول فول کام کرنے کی بجائے آپ جہاں جگہ ملتی ہے حدود عرفات کے اندر، آپ وہاں بیٹھ کر دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اب یہاں اکثر حاجی غلطی کرتے ہیں۔ حاجی غلطی کیا کرتے ہیں کہ بعض حجاج حدود عرفات کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور غروب آفتاب تک وہیں باہر رکے رہتے ہیں اور وقوف عرفات کیے بغیر ہی واپس مزدلفہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے حج فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حج وقوف عرفہ کا ہی نام ہے، اور حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود عرفات کے اندر رہے۔ اگر رش یا کسی اور وجہ سے عرفات میں داخل نہیں ہو سکا تو غروب آفتاب سے قبل ضرور داخل ہو اور غروب آفتاب تک ٹھہرا رہے۔ اللہ اکبر۔ بعض حاجی غروب آفتاب سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ جبل رحمت تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی اظہار ثانی کا باعث بنتے ہیں، اس طرح آپ نے بالکل نہیں کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں۔ میدان عرفات میں جہاں کہیں جگہ مل جائے وہاں وقوف کرنا، پڑاؤ ڈالنا اور پہاڑ پر چڑھنا اور وہاں نماز پڑھنا درست نہیں ہے کہ بندہ کہ نہیں جی پہاڑ دے اتنے چڑھ کے تو میں 2 رکعتاں پڑھنی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے وہ جبل رحمت کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ عرفہ کے دن مخصوص جگہوں میں مٹی اور کنکریوں کے ڈھیر بناتے ہیں، جیسے یہاں ربیع الاول میں بناتے ہیں ویسے وہاں کرتے ہیں، اور وہاں وہ کہتے ہیں جی جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ ایسی کنکریاں اٹھا لیں جن کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آیا ہو، کیونکہ ہم نے شیطان صاحب کو مارنی جو ہے نا کنکریاں، یعنی اس کا اتنا اکرام کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے صاف کنکریاں، اور کئی بندے اس کو دھوتے بھی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب 9 ذی الحج ہم عرفات کے اندر ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر یہی اطاعت ہے کہ ورنہ حاجی حج پر ہے اور نماز نہ پڑھے، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے عرفات سے آپ نے مزدلفہ آ جانا ہے۔ آپ نے عرفات سے کہاں پر آ جانا ہے؟ مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ اب ہم نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کرنی ہیں اور قصر کرنی، اور باقی رات سکون سے سو کر گزارنی، جیسا کہ شیخ سر نے بتایا۔ اس لیے سو کر گزارنی ہے کہ اگلے دن یوم اکبر ہے، اگلے دن یوم اکبر ہے، تو ہم نے تو حج اکبر کا تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے، یعنی اگلے دن بڑا تگڑا کام ہم نے کرنا ہے اور کافی مشقت والا کام ہم نے کرنا ہے۔ تو مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع اور قصر کرنی ہے۔ مزدلفہ میں رات سو کر بسر کرنا مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ اب جب رات ہم سوئیں گے تو اگلا دن کون سا ہوئے گا جی؟ 10 ذی الحج کا۔ اللہ اکبر، حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج کا، اور یہی یوم الاکبر ہے۔ اس دن ہماری بڑی تگڑی مصروفیات ہیں۔ اس دن ہم نے وقوف مزدلفہ، مینا میں جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے، طواف افاضہ کے لیے مکہ جانا ہے، واپس پھر مینا میں آنا ہے۔ ایک مرتبہ پنجاب یونیورسٹی میں حج ٹریننگ کا موقع ملا تو وہاں ایک بچی نے کہہ دی تھی تو اس دن قربانی کی نماز عید کی کس نے پڑھنی؟ ہاں جی، تو میں نے اس کو کہا جی وہ آپ پڑھنی تو ویسے چاہیے، تو میں نے وہاں پوچھا کہ آپ میں سے پہلے کوئی بندہ گیا ہوا ہے حج پر؟ تو خواتین تھیں کافی ساری، بچے نے کہا جی ہاں جی ہم گئے تھے۔ تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ آپ نے پھر عید کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ کہتی جی ادھر ہی پڑھی تھی ہم نے۔ میں نے کس کے پیچھے پڑھی تھی؟ کہتی جی امام کعبہ کے پیچھے پڑھی تھی۔ اچھا، اب کیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں عقل کی جگہ بھی خلوص ہے۔
यानी शौरी तौर पर, हालांकि उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, होती जो नहीं है तो कहां पढ़नी थी उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने कहा जी हमने पढ़ी थी, काफी बहस व तमीज की, फिर उनको समझाया कि बेटा हम यहां रहने वाले लोग जो पढ़ेंगे तो तुमने वहां नहीं पढ़नी। तो यानी इसलिए कि आप शौरी तौर पर बहुत कम एहतमाम होता है। हमारी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियन अफेयर है, मोरा जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियन अफेयर, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, हमने अपना हार्ट ट्रेनिंग उनको बताया। वो कहते हैं वल्लाह यार हम तो अंधेरे में रहे, कई जगह पर हम उनकी तरफ से हार्ट ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको मुश्किल तो होती है हमारी कई बातों से, लेकिन वो कहते हैं यार आप तसल्ली करवा देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हज यौम अकबर है और हज का तीसरा दिन है 10 ज़िलहज्जा। आपने नमाज फजर से थोड़ा पहले, रात वैसे ही बंदा थक के सो के थक जाता है, नमाज फजर से थोड़ा, मामूल से थोड़ा फजर से पहले अदा कर ले नमाज फजर, और फिर आप वहां मशअरुल हराम पहाड़ी के दामन में, ये जहां कहीं भी जगह मिले, किबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद करके सूरज तुलू होने से पहले खूब रोशनी होने तक तकबीर व तहलील, तस्बीह, हम्दो सना, तौबा इस्तगफार कसरत के साथ आप दुआएं पढ़ें। और वहां से पहली रमी के लिए, रमी उसको मारने को कहते हैं ना, कि 7 कंकरियां आपने ले लेनी, और कई बंदे वहां से मुट्ठा भर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करना है, बस 7 कंकरियां गिनकर आपने ले लेनी है। अच्छा, यहां भी कई गलतियां होती हैं, कुछ लोग मुजदलिफा पहुंचते ही मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने से पहले ही कंकरियां चुनना शुरू कर देते, कहीं मुक्क ना जाए, ऐसा हरगिज नहीं करना आपने। तो ये समझें कि कंकरियां मुजदलिफा से ही होनी चाहिए, हालांकि सही मसला यह है कि कंकरियां हुदूद हरम से कहीं से भी ली जा सकती, और कुछ लोग कंकरियों को इकट्ठा करने के बाद उनको पानी से धोते हैं, यह अमल भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जी आप हैं वादी मिना में, हज का तीसरा दिन 10 ज़िलहज, आप तुलू आफ्ताब के बाद सुकून और वकार के साथ तलबिया कहते हुए आप मिना की तरफ जा रहे हैं। मुजदलिफा और मिना के दरमियान एक वादी मुहस्सर है, जो कारी अब्दुल वदूद साहब ने जो तिलावत की कुरान पाक की, तो उसमें उन्होंने एक सूरत पढ़ी जिसका नाम सूरतुल फील है। वो उसका पस मंजर जो है ये वादी मुहस्सर ही है, कि यहां पर अल्लाह ताला ने वो जो अबरा आया था हाथी वालों के ऊपर, वो अल्लाह ताला ने आसमान से जो परिंदों के झुंड उतारे, उनको कंकरियां लगी। तो यहां से तेजी के साथ आपने गुजर जाना है, और आपने यहां से जब तेजी के साथ गुजरना है तो आपने ये बड़े शैतान के पास आए, ये बड़ा जमर है, यहां पर आपने आ जाना है, और ये उसका जरा सारे जमरात का ये ऊपर से व्यू है उसका। अब हमारा यहां पर जो करने का काम है वो ये है कि हमने 10 ज़िलहज्जा को सिर्फ बड़े जमरा अकबा को 7 कंकरियां मारनी, और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहना है। अब वहां भी बड़ा लतीफा होता है, कई बंदे शैतान को कंकरियां मारते हुए भी शैतान के हाथों इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो भी बंदे कहते हट जा पीछे, हाँ जी, कई बंदे वहां जुबान भी इख्तियार में नहीं रहती, वो गाली भी निकाल देते, उनको कहते यार, वो कहते भाई शैतान को गाली दिया, आपको तो नहीं दी ना। यानी वहां पर आपने अपनी जुबान को तकबीर और तहलील से जो तर करना है, तो उस दिन आपने सिर्फ बड़े जमरे को कंकरियां मारनी है, और कंकरियां मारने के बाद रमी से फारग होने के बाद खैमों में जाकर, अब चूंकि जो कुर्बानियां हैं वो आपको बताया जाता है कि फलां टाइम आपकी हो जाएगी, तो आपने कुर्बानी का पता चल जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई है, सर के बाल मुंडवाने हैं या कटवाने हैं। अगर पहले बाल कटवा लें या बाद में कुर्बानी हो जाए तो इन दोनों की तरतीब में कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, कुर्बानी से फारग होने के बाद अब आपने बड़ा काम, जैसे कि शेख साहब भी बता रहे थे कि आपने अपनी तवानाइयों को बचाकर रखना है। अब आपने मिना से जाना है मक्का, यहां तवाफ़े इफाजा या तवाफ़े ज़ियारत करना है। अब आप थके हुए हैं, आप मिना से गए हैं मक्का, ट्रैफिक भी, गाड़ियों पर भी लोग जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, मतलब राशि इतना, गाड़ियां भी पैदल ही चल रही होती, उस दिन तो गाड़ियां भी पैदल वाला हिसाब होता है। तो अब आप आ गए हैं मक्का, यहां से यहां तवाफ करें, और तवाफ करने के बाद आपने वापस मिना में आ जाना है। तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े इफ़ाज़ा, एहराम उतार कर मक्का मुकरमा के लिए रवाना होना चाहिए। आम लिबास में तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े इफ़ाज़ा अदा कीजिए, और 7 सफ़ा मरवा की सई कीजिए। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद वापस मिना आ जाइए, क्योंकि रात मिना में ही गुजारी जाएगी। तवाफ़े ज़ियारत के बाद एहराम की तमाम पाबंदियां आपसे खत्म हो गई। अब आप यहां आ गए हैं जो फाइबर के खैमे बने हुए हैं,
यहां भी बड़े लतीफे होते हैं, लेकिन आपने जो बयान सुना है शेख साहब का, जो हमने कुछ आपको हिदायत दी है, आपने इनकी रोशनी में किसी से उलझना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, अपनी इबादत से, दुआओं से, अपने काम से काम रखना है। तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद आप वापस आ गए हैं जी मिना में। अब यहां पर आपने 11, 12, 13 ज़िलहज, ये 3 दिन आपने मिना में गुजार रहे हैं। हज का चौथा दिन है और आप कहां पर हैं? वादी मिना में। अब यहां मामूल हमारा क्या है? रोज का मामूल ये है, रोज हमने काम करना है कि आज ज़वाले आफ्ताब दोपहर के बाद बितरतीब हमने तीनों जमरात को, 1 को, 2 को, 3 को 7-7 कंकरियां मारनी है और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहना है। बाकी सारा दिन इबादत, दुआ, तकबीर और तहलील, अल्लाह की हम्दो सना में आपने गुजार देना है। इसी तरह फिर अगले दिन यही रूटीन है आपकी, आपने आज भी यही करना है। जोहर की नमाज के बाद आपने तीनों जमरात को 7-7 कंकरियां मारनी है और हर कंकरी मारते हुए अल्लाह अकबर कहना है। कंकरियां मारने में नियाबत की जा सकती है। आपके पास कोई बुजुर्ग है, कहता है यार मेरे हिस्से की मार दी, तो आप उसके हिस्से की मार सकते हैं कंकरियां। अच्छा जी, अब कुछ बातें ऐसी हैं कि बाज लोग कंकरी मारते वक्त ये एतकाद रखते हैं कि वो शैतान को मार रहे हैं। अब आप पता तो है शैतान के ऊपर वाट तो बड़ा होता है, बंदों को गुस्सा होता है, वो उसको मतलब इसी तरह ही समझते हैं कि जैसे मैं सच्ची मुच्ची शैतान को कंकरियां मार रहा हूं। फिर उनके गुस्से का भी इजहार होता है, वो गुस्सा भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। तो ये तो एक हज के शायर में से है ना, हज के अरकान में से, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। और रमी जमार के लिए कई बंदे बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं, कई बंदे अपने जूता उतार लेते हैं, तो ये ज्यादती है, ये गुल्व है, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करनी। और कंकरियां मारते वक्त दक्कम पेल और मार धाड़ बिल्कुल नहीं करनी। यानी शैतान को ही अगर कंकरियां मार रहे हैं तो फिर शैतान के आगे उसकी बातों, ये तो उसका काम है ना धक्के देना। अच्छा जी, अब जी 12 ज़िलहज को आपने यही काम किया है। अब 12 ज़िलहज को आप कंकरियों से फारग होकर अगर आप मक्का जाना चाहते हैं आप चले जाएं, लेकिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, अगर आप मिना से गुरूब आफ्ताब से पहले निकल कर जा सकते हैं तो आप मक्का में आ जाएं, आपका जो हज है वो मुकम्मल हो चुका है। अब अगर 12 को आप नहीं निकल सके, वहां नहीं पहुंच सके, अगला दिन 13 का आपके पास है। 13 ज़िलहज को आपने इसी तरह करना है, आपने कंकरियां मारनी है, कंकरियों से फारग होकर आप गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप वहां से निकल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला आपके हज को हज मबरूर बनाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आप सारे हज पर जाएं तो आप जहां इस इदारे के लिए जहां पर आप बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये इंतजाम किया है, इनकी बहबूद और तरक्की के लिए जब आप दुआएं करेंगे, वहां साथ हमारे इदारे बैतुल कुरान के लिए भी आपने बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमारी इंतजामिया को, हमारे इदारों को, ये देखें दीन के मराकज हैं, अल्लाह ताला इनको कायम और दायम रखे। अब जी मक्का से रुखसत होने से पहले हाजी का आखिरी काम तवाफ़ विदा है। और जैसा कि शेख साहब ने बताया कि मेरे आगे एक बंदा जा रहा था, वो ये कह रहा था कि अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन मेरी दुआएं कबूल कर ली। मैंने यहां पर एक बंदे को देखा, वो मुल्तजम से चिमटा हुआ था, वो रो रो के कह रहा था कि या अल्लाह मुझे बता दे कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली है, कर ली, बस मुझे दिल में ये बात आ जाए सही किसी तरीके से कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। तो यानी अब आप गए वहां दुआओं के लिए हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो जो हज के अरकान हैं, हज की नियत करना, वकूफ अरफा, तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ फ़ाज़ा और सफ़ा मरवा की सई, इनमें से कोई एक रुकन भी रह जाए तो हज नहीं होता। अच्छा, अब इस तरह शेख साहब सवाल जवाब नमाज के बाद करेंगे। अच्छा, अब ना जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज़ियारत के एतबार से हैं, जहां ज़ियारत आपने करनी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो ज़ियारत वाला हमारा सेगमेंट है, कि वहां पहुंचकर किन चीजों की ज़ियारत करनी चाहिए और किन चीजों की ना करें। अच्छा जी, अब ये तो आपका हज मुकम्मल होगा, वहां हाजी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, जाएं, आप गए हुए हैं। अच्छा जी, वहां जो सबसे बड़ी ज़ियारत है मक्का मुकरमा की, वो तो बैतुल्लाह ही है। हाँ जी, तो बंदे गड्डी करा के वापस जाते हैं दूसरे कई जगहों पर, तो आप वहां गए हुए हैं तो बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। सबसे पहला घर जो अल्लाह ताला का रुए जमीन पर बना वो बैतुल्लाह है। अब बैतुल्लाह के अंदर आपने ज़ियारत करनी है तो हजर अस्वद की करें।
اگر زیارت کرنی ہے تو بیت اللہ میں مقام ابراہیم کی زیارت کریں. اگر زیارت کرنی, ویسے تو ابھی پچھلے دنوں کھلا ہوا تھا, آج بند ہو گیا, یہ زمزم کا کنواں نظر آتا تھا, لوگوں نے دیکھا, اب تو وہ اپنی وہ جو کدئی میں ان کی فیکٹری ہے وہاں آ گیا ہے, پائپ لائن ڈال کر انہوں نے. زیارت اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جائیں, وہاں جا کر زیارت کریں. اور اسی طرح مکہ کے اندر جبل نور ہے, اور جبل نور کے پاس وہ غار ہرا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, وہاں پر جائیں. لیکن وہاں کئی بندے اپنا نام لکھتے ہیں, اس طرح کے کام نہ کریں. وہاں کئی بندے اپنی کشیدہ کاری کرتے ہیں, تو آپ ان جگہوں کی زیارت کے لیے جائیں. اسی طرح پھر مدینہ شریف کے اندر کئی جگہ ہیں جو زیارات کے لیے ہیں. مدینہ شریف میں جو سب سے بڑی زیارت ہے وہ مسجد نبوی ہے. آپ مسجد نبوی کے اندر آئیں, مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کا ملتا ہے. اچھا, آپ پھر مسجد نبوی کے اندر ایک اور جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, اور اس کا فرق یہ ہے کہ باقی ساری مسجد نبوی کا جو کارپٹ ہے وہ سرخ رنگ کا ہے, اور جو ریاض الجنہ والا کارپٹ ہے وہ تھوڑا گرین رنگ کا ہے, سبز رنگ کا ہے. تو وہاں پر بھی آپ ذرا یہ اعتقاد رکھیں کہ آپ وہاں گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے لے کر ممبر تک جو جگہ ہے, فرمایا یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. تو وہاں جب آپ جائیں تو اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا اور باغیچہ قرار دیا ہے, تو یا اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا, اور اگلی جنت بھی میرے اوپر حلال اور واجب کر دے. تو یعنی اپنا اس رحمت کے احساس کو اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دینا. یہاں پر آئیں, یہاں زیارت کریں اس کی, یہاں نفل پڑھیں, اور جاتے ہوئے روضہ رسول پر, یہ وہ جگہ ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, یہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. یعنی اس سوراخ کے آگے. اب وہ پتہ نہیں ہے کہاں پر, کدھر ہے. وہ ایک مرتبہ میں وہاں ایک متوع سے ملا, اس کو میں نے کہا کہ یار وہ اندر کا سین کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ حاضر الجدار و بعد الجدار و بعد الجدار و ثم الجدار. وہ کہتا ہے ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے, ایک کندھ ہے, کندھ پیچھے ایک اور کندھ ہے, پھر ایک اور کندھ ہے, پھر کندھاں دے وچ پتہ نہیں کہ یہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہاں پتہ کریں کہ یہ کیا ہے. اچھا, اب جی اس کے بعد اس کی زیارت سے فارغ ہوئیں گے آپ, تو اب جنت البقیع چلے جائیں گے. یہی آپ باب بقیع سے باہر نکل جائیں اور سامنے جنت البقیع ہے. پھر مدینہ شریف کی زیارت کے اعتبار سے مسجد قباء ہے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے, وہاں جائیں. اور پھر اسی طرح مسجد قبلتین ہے, یہ بھی تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ جی مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. پھر اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ بقیع الغرقد ہے جہاں 10,000 صحابہ اکرام یا کم و بیش کی قبریں, لیکن یہاں دیکھ کر پھر ہمیں تھوڑا احساس بھی کرنا چاہیے کہ یار یہ صحابہ سے بڑا تو کوئی ولی نہیں تھا, وہ حقیقت میں اللہ کے ولی تھے. یار یہاں نہ کوئی قبہ, نہ کوئی مزار, نہ کوئی گل, نہ کوئی بات, نہ کوئی ڈیوا, کچھ نہیں ہے. تو یہ بالکل سادہ قبریں ہیں, تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں تو مزاروں والے وہ بھی تو جاتے ہی ہیں نا, لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں, وہ جیسے جاتے ہیں خالی ویسے آ کر آ جاتے ہیں. اسی طرح پھر اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو میدان بدر چلے جائیں. بدر کے جہاں اسلام کا پہلا مارکہ ہوا تھا, مارکہ بدر, وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح عظیم سے نوازا تھا, اس کی زیارت کریں. اور مدینہ شریف کے اندر احد پہاڑ کی زیارت کریں. تو یہ تو تھا کچھ زیارات کے اعتبار سے سیگمنٹ. تو میں اب آخر میں اسی بات پر اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیت اللہ شریف کی اور مدینہ شریف کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب انشاءاللہ شیخ صاحب اگلا پروگرام آپ سے کریں گے. میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا, فاعف عنا يا كريم, فاعف عنا.